आज अहमदाबाद में आम आदमी पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें गुजरात नगर निगम, नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत उम्मीदवारों की चौथी सूची की घोषणा की गई। आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रदेश सह प्रभारी गुलाब सिंह यादव और पार्टी के तमाम नेता इस पूरे कार्यक्रम में शामिल हुए। आगामी स्थानिक निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर दिल्ली से गुजरात आने वाले आम आदमी पार्टी के प्रचारकों की घोषणा की गई। पार्टी के तमाम कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई। देखें हमारे राहुल पांडे की इस खास रिपोर्ट में। तमाम मीडियाનો મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આજની આ પ્રેસ વાર્તામાં અહીંયા હાજર છે અમારા ગુજરાત પ્રદેશના પ્રભારી ગુલાબસિંહજી, ગુજરાત પ્રદેશ મહામંત્રી જયદીપભાઈ પંડ્યાજી, મીડિયા ઇન્ચાર્જ તુલીબેન બેનર્જી, ગૌરીબેન, તમામનું સ્વાગત કરું છું। આજે અમારા ચોથી લિસ્ટ ઉમેદવારોની અમે આજે ડિક્લેર કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। અગાઉ 1731 ઉમેદવારોનું લિસ્ટ અમે જાહેર કરી ચૂક્યા છીએ અને આજે 584 ઉમેદવારોનું અમે લિસ્ટ જાહેર કરવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। લગભગ 27% ઉમેદવારો અમે ડિક્લેર કરી ચૂક્યા છીએ અને અગાઉ પણ અમારું બીજું પણ 2-3 દિવસની અંદર તમામ કેન્ડિડેટનું લિસ્ટ અમે જાહેર કરીશું। ઘણા સમયથી મીડિયામાં એક એવી ચર્ચાઓ થઈ રહી છે કે દિલ્હીનું શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વ ગુજરાતના આવનાર ઇલેક્શનમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓમાં બહુ ધ્યાન નથી આપી રહ્યું, પણ એ વાત બિલકુલ પાયાવિહીન છે। જેના માટે હું આપ સામે અમારા શીર્ષ નેતૃત્વની ગુજરાત વિઝિટની થોડીક ઇન્ફોર્મેશન આપવા માગું છું। અમારા શિક્ષા મંત્રી દિલ્હીના અને પાર્ટીના બહુ વરિષ્ઠ નેતા મનીષજી તારીખ 6થી ગુજરાતની વિઝિટનો કરીને શુભારંભ કરી રહ્યા છે અને ઇલેક્શન પતે ત્યાં સુધી દિલ્હીનું દરેક શીર્ષ નેતૃત્વ મનીષજી, સંજયસિંહજી, રાઘવ ચડ્ડાજી અને આતિશી અને સૌરભ ભારદ્વાજી ઓલરેડી અહીંયા આવી ચૂક્યા છે, પણ 6ઠી તારીખથી મનીષજી આ આખા ચૂંટણી પ્રચારનો બણગું ફૂંકી અને અહીંયા 4 મહાનગરપાલિકામાં બહુ મોટા રોડ શો કરવાના છે। એની તારીખ માટેની હું તમને માહિતી આપું તો 6ઠી, 7મી, 13મી અને 14મી 6ઠી તારીખે મનીષજી અમદાવાદમાં કરશે, ત્યાંથી રાજકોટ જશે, 13મી તારીખે એ બરોડામાં કરશે અને 14મી ફેબ્રુઆરીએ એ સુરતમાં કરશે। આ કર્યા પછી એમને પેરેલલ સંજયસિંહજી આવી રહ્યા છે। સંજયસિંહજી 6ઠી અને 7મી તારીખે સુરતમાં છે, 13મી અને 14મી તારીખ સુરતમાં છે, 13મી, 15 અને 16 તારીખે બરોડા અને રાજકોટમાં રોડ શો કરવાના છે। આની બહુ મોટા પાયા પર તૈયારીઓ થઈ ચૂકી છે। કાર્યકર્તામાં ઘણો જ ઉત્સાહ છે અને આપ જોઈ શકશો કે જે મેણું આમ આદમી પર મારવામાં આવતું હતું કે દિલ્હીનું શ્રેષ્ઠ નેતૃત્વને ગુજરાતની પડી નથી, એ બહુ જ ટૂંક સમયમાં આપ જોઈ શકશો કે લોકોને આવકારવા બધું જ નેતૃત્વ ગુજરાતની અંદર મોટા ભાગના રોડ શો કરી રહ્યું છે। અરવિંદજીની મુલાકાત અમારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને પ્રભારીશ્રી સાથે થઈ ગઈ છે। અરવિંદજી અત્યારે દિલ્હીમાં જે કિસાન આંદોલન ચાલી રહ્યું છે એ બાબતમાં થોડા બિઝી છે। એમના અમે સતત સંપર્કમાં છીએ, એમનું માર્ગદર્શન અમને મળતું રહે છે અને એમની જ એડવાઇસથી સંજયસિંહજી અને મનીષજી गुजरात में विजिट करी रहा है। अहमदाबाद में पूरा रूट प्लान आपको दिया जाएगा। दोनों वार्ड, दोनों सिटी के दोनों रिवर फ्रंट के उस साइड, रिवर फ्रंट के इस साइड पूरे वार्ड को कंप्लीट करते हुए पूरे शहर में बहुत भव्य रोड शो होगा। ये करीशू अने ये दिल्लीना कामोनी अमारे डोर टू डोरना प्रचारनी अंदर पत्रिकाओं साथे अमारा दरेक उम्मीदवार घरे घरे बधी वस्तुओं पहोंचाड़ी रह्या छे। रोड शो में आवी वस्तुओं प्रचार करो एना करता अमे एवुं इच्छीए छीए कि अमारा उम्मीदवार दरेक घरे जाए, पत्रिका आपे अने पर्सनली समझावे। जे अमे अमारो दरेक उम्मीदवार राज्यना दरेक घरों में डोर टू डोर विजिट करीने समझाई रह्यो छे ने एनो बहुत सारो प्रतिसाद अमने मळी रह्यो छे। बहुत बड़ी संख्या में होगा सर, डोर टू डोर सभा में है सर, लेकिन रोड शो में हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, लोगों की सेहत को कोई नुकसान नहीं पहुंचे इस तरह से कार्यक्रम होगा, लेकिन बहुत भव्य होगा। आप देख रहे हैं कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है और मैं कल ही दिल्ली से आया हूँ। पिछले 4-5 दिन मैं दिल्ली गया था, लेकिन दिल्ली में जो कुछ घटा 26 जनवरी को, कई सारे साथियों के मन में सवाल है कि ऐसा क्यों हुआ, किस कारण हुआ और वो लोग कौन थे जिन्होंने
किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की। सोशल मीडिया में, मीडिया के अंदर तमाम तरह से जो भी सोर्सेज हैं, आपको कहीं ना कहीं से कुछ फ़ोटो, कुछ वीडियोस वायरल हुए। पता चला कि पिछले 2 महीने से ज़्यादा से वक्त जब दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है, इस देश का अन्नदाता हजारों की संख्या में सिंघू बॉर्डर पर शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे। और इन 2 महीनों में लगातार केंद्र सरकार के साथ भी परस्पर कई बार उनकी मुलाकातें हुई, लेकिन कोई भी ठोस निर्णय पर केंद्र सरकार नहीं पहुंच पाई। और 26 जनवरी को इस देश के अन्नदाता ने तय किया कि क्यों ना आज़ाद हिंदुस्तान के अंदर हम भी एक ट्रैक्टर मार्च निकालें। उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस से इजाज़त लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के कुछ तथाकथित गुंडों ने जानबूझकर किसानों को बदनाम करने के लिए इस तरह की अप्रिय घटनाओं को अंजाम दिया ताकि किसानों को बदनाम किया जा सके। कल आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन के अंदर किसानों को किस तरह से खून के आंसू रोने पड़े। आज़ाद भारत के हिंदुस्तान में केंद्र सरकार से लड़ते हुए मैंने तो शायद पहली बार अपनी उम्र में किसानों को रोते हुए देखा है। मुझे केंद्र सरकार का चुनाव के दौरान इस्तेमाल किया हुआ वो स्लोगन याद आ गया, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ऐसे कौन से उद्योगपति हैं जिनको फ़ायदा देने के लिए करोड़ों किसानों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है। पूरे अनाज को तिजोरी के अंदर बंद रखने की इस पूरे के पूरे कानून की इस प्रक्रिया को क्यों नहीं वापस लिया जा रहा है? क्यों नहीं किसानों को एमएसपी की लिखित गारंटी दी जा रही है? लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि जब किसान 26 जनवरी के बाद भी वहाँ पर बैठे तो उनके टॉयलेट वहाँ से हटा दिए गए। पीने के पानी की जो व्यवस्था वहाँ पर सुचारू रूप से चालू थी, उस व्यवस्था को ख़त्म कर दिया गया। और रात को पैरामिलिट्री फोर्स बुलाकर उनको कुचलने के लिए, उनके ऊपर लाठीचार्ज करने की एक प्रायोजित पूरी की पूरी योजना बनाई गई। किसानों को इसकी भनक लगी और किसानों ने रोते हुए, बिलखते हुए अपने दुख को देश के हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाने का प्रयास किया। और उसका अंजाम ये है कि आज दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान के अलग अलग राज्यों से ना कि सिर्फ किसान बल्कि जवान, बल्कि मजदूर, हर पढ़ा लिखा वर्ग दिल्ली बॉर्डर पे पहुंच चुका है और केंद्र सरकार के सामने एक मार्मक अपील कर रहा है कि इन कानूनों को आप वापस लीजिएगा। मैं गुजरात प्रदेश की तरफ से, यहाँ का इंचार्ज होने के नाते, पूरे गुजरात इकाई की तरफ से भी मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि आप अपने इस तानाशाहपूर्ण रवैये को छोड़िए और जल्द से जल्द जिन व्यापारियों के दबाव में आप आकर ये कानून थोपना चाहते हैं, इसको तुरंत वापस लीजिएगा। और पिछले 2 महीने से ज़्यादा से वक्त से जो ठिठुरती ठंड में हमारे किसान भाई जो सड़कों पर वहाँ बैठे हैं, उनको राहत देने का काम केंद्र सरकार करे। मैं ऐसा आपके माध्यम से केंद्र सरकार से अपील करना चाहता हूँ। आपने देखा कि सनी देओल जी के साथ दीप सिंधु लगातार वायरल हुआ और सनी देओल जी जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है भाजपा से, उन्होंने तुरंत आनन फानन में बयान जारी किया, ट्वीट किया कि इस व्यक्ति से मेरा कोई संबंध नहीं है। लेकिन तुरंत उनका एक पुराना वीडियो जारी किया गया जिसमें कि माननीय सनी देओल जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको बैठा हुआ पाया गया। तमाम तरह के सबूत आपके सामने। निश्चित तौर पर जब कोई नेता पब्लिक में जाता है तो उसके साथ में वीडियो, उसके साथ में फ़ोटो हो सकते हैं, लेकिन ये तो बड़े कमाल की बात है कि माननीय सांसद सनी देओल जी उस बात को ये मानते हैं कि दीप सिंधु जी मेरे भाई के समान है, मेरे भाई के समान है। उस वीडियो को आप देखेंगे, उन्होंने कहा मेरे भाई के समान है। और आप ये देखिएगा कि इस पार्टी में आने के बाद देशभक्ति को लेकर, देश को लेकर
माननीय सांसद जी के बयान सुनिएगा, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ध्वज को अगर लाल किले की प्राचीर से गिराता है सड़कों पर, तो ऐसे व्यक्ति को एक ऐसी पार्टी का सांसद जो अपने आप को देशभक्त मानते हैं, वो उनको अपना भाई बताते हैं, वो देश के गद्दार हो सकते हैं, भाई तो कभी नहीं हो सकते। पर उन्होंने क्यों माना कि मेरे भाई जैसा है? हाँ, यस, यही तो हम कहना चाह रहे हैं, यही तो हम कह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है कि तुम करो तो बलात्कार और हम करें तो, यही है ना उनके पॉलिसी है कि जो कोई भी किसी मुद्दे में मिल जाए उनको मत छोड़ो, तुमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं है। कैमरामैन विजेंद्र पासी के साथ रिपोर्टर राहुल पांडे, रॉयल गुजरात न्यूज, अहमदाबाद।